lives of your children, Father. We just thank you, Lord, that we have an opportunity to connect with these people internationally across the waters, that we can share the gospel and the truth, Father, of your word. And we just thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. All right, we are welcome to be here with you guys, excited to be here. Yes, we are. And Sarish, how often do you want me to stop? After completing your whole sentence. Yes. After completing your sentence, we don't need the breaks because we won't be interpreting you word by word. You will understand your meaning and then you will translate. Right? Okay, awesome. Yes. Yes. Well, my name is Neil Beam. I'm from Colorado. मेरा नाम नील है और मैं कोलोराडो अमेरिका से हूँ. I'm Joseph, and I'm so blessed to be here. Thank you for having us. और मेरा नाम जोसेफ है और मैं शुक्र करता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ इस वक्त. And we have a word to share with you guys. और हमारे पास खुदा का कलाम है आपके साथ शेयर करने के लिए. That's going to change your life. जो आप लोगों की जिंदगी को चेंज कर देगा. We believe that there's going to be healing. हमारा ईमान है कि इससे हम शिफा पाएंगे. And we believe that you are going to be changed today by the word of God. और कि आप सब आज तब्दील होकर यहाँ से Amen. So what we're going to start with today is I'm going to tell you a little bit about myself. आज मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा. I don't know if Sarish has told you guys or not, but I was blind for 4.5 years. शायद मिस सेरिश ने आपको ये बताया नहीं, बट मैं 4.5 years से ब्लाइंड था. I couldn't see anything. Doctor said I would never see again. डॉक्टर ने कहा था कि मैं दोबारा कभी नहीं देख सकूंगा. But we have a big God. बट हमारा खुदा बड़ा खुदा है. Amen. 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 So that's a little bit about myself. Today we're going to talk about purpose in fellowship. Purpose की बात. आपकी जिंदगी का मकसद. Yes. And we will also be talking a little bit about healing. और कुछ बात करेंगे शिफा के बारे में. So the definition of purpose, according to the Oxford Dictionary, purpose का मतलब according to the Oxford Dictionary, the reason for which something is done or created or for which something exists. purpose का मतलब होता है जिस किसी मकसद की वजह से जब कोई चीज बनाई जाती है या क्रिएट की जाती है, तो जो मकसद है that is basically the purpose. उस चीज का इस्तेमाल. We all want to know what God's purpose is for our life. हम सब ये जानना चाहते हैं कि खुदा का हमारी जिंदगी के लिए क्या मकसद है. But the number one purpose God has for us is fellowship. सबसे पहला पर्पस जो खुदा का हमारी जिंदगी में है वो है फेलोशिप. उसके साथ मेल मिलाप रखना. He wants sorry. he wants us to talk with him and walk with him and experience his love in everything that we do. खुदा ये चाहता है कि हम उससे बात करें, उससे मुलाकात करें और सब कुछ उससे वो करें जो वो हमसे चाहता है. Yes. By the way, you're translating very well. Thank you so much. Oh goodness. I know I wanted to talk about Genesis 3:8. I wanted to start with that. It said,
God was walking, talking in the cool of the day. I believe you all got your Bibles with you, right? तो खोलो. Genesis 3:8. पैदाइश उसका 3 था, उसकी 8 है. Yes. The very first part of that verse उसका जो पहला हिस्सा है says, and they heard, Adam and Eve, the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया. So God was wanting to walk with Adam and Eve खुदा to share, आदम के साथ चलने में इंटरेस्टेड था, to be able to share who he was with them. ताकि वो बता सके कि वो कौन है. खुदा अपना रियल कैरेक्टर उन पे रिवील कर सके, इसलिए खुदा उनके साथ चलना फिरना चाहता था, बातचीत करना चाहता था. To know God is to have an intimate relationship with him. खुदा को जानने का अक्सर मकसद ये है कि उसके साथ आपका इंटीमेट रिलेशनशिप हो. उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका कोई ताल्लुक नहीं और आपने सिर्फ रवायती दुआ करने आना है. उसके साथ क्या ताल्लुकात हो? इंटीमेट ताल्लुकात हो, गहरे ताल्लुकात. See, I need to learn to speak Urdu. Sure, one day you will. We will be charging you. Oh, God loves you so much that he wants a personal relationship with you to be able to walk and talk and tell you about himself. खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे साथ एक रिश्ता कायम करना चाहता है जिसमें वो हमारे साथ मेल मिलाप रख सके और हमारे साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप सेट कर सके. Yes, God has made it so we could be able to speak with him personally in our lives. तो खुदा ने हमें इस तरह बनाया है कि हम उससे हर रोज इंडिविजुअली और पर्सनली मुलाकात कर सके और बात कर सकें और रिश्ता कायम कर सकें. यानी कि खुदा ने हमें इस मकसद के साथ बनाया है कि हम उसके साथ क्या रख सके? रिश्ता रख सकें. क्या रख सकें? रिश्ता रख सकें, ताल्लुक रखिए. मकसद है, क्योंकि हम टॉपिक का नाम क्या है? मकसद, पर्पस. So how many of y'all have a relationship with your phone? आप में से कितने हैं जिनका अपने फोन के साथ एक रिलेशनशिप है? सर आप कैमरा घुमा दें. Oh. Communication. Raise your hands if you have relationship with your phone. Anyone who denies or denying? सबका है. All the students around here has a relationship with right now. What that means is you spend more time on your phone than you do talking with God or fellowshipping with God. इसका मतलब ये है कि आपका अपने फोन के साथ ज्यादा गहरा रिश्ता है जितना खुदा के साथ नहीं है. आप फोन के ऊपर ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं खुदा के साथ स्पेंड करने से ज्यादा. I'm guilty of it too. मैं भी इस चीज का मुजरिम हूँ. See, I got my phone right here. My phone. Oh, but it's so easy to allow different things in our life to come in the way of our fellowship with God. ये इतना आसान है कि हम बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में इतना हिस्सा दे देते हैं कि हम वो खुदा के साथ हमारा रिश्ता शायद किसी जगह कमजोर कर देते हैं और वो खुदा हमारे दरमियान आ जाता है. And did you know that you've heard of hardness of heart? आप लोगों ने ये सुना है कि आपका दिल सख्त हो सकता है, पत्थर का हो सकता है. जी. Yes. Your heart can neither become hard to the world or it can become hard to the word. आपका दिल या तो दुनिया के लिए सख्त हो सकता है या फिर आपका दिल खुदा के लिए सख्त हो सकता है. बात समझाइए. तो
बात नहीं है, पर आपकी मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहती हूँ। सो आपका दिल किसके लिए सख्त हो सकता है? दुनिया के लिए भी हो सकता है और किसके लिए भी हो सकता है? खुदा के लिए भी। So where our focus is what is going to determine where our heart is. तो हमारा फोकस क्या है, ये डिसाइड करता है, हमारा फोकस डिसाइड करता है कि हमारा दिल किस चीज पर लगा हुआ है। I love what the Apostle Paul said. He said that I may know him. You know, that was years after his born again experience. That was towards the end of his life. मैं जैसे कि पॉल ने कहा था, can you please repeat? That Paul said that I may know him and the power of his resurrection. जैसे कि पॉल ने कहा था कि मैं जानता हूं कि उसकी जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी पावर ऑफ रेजरेक्शन क्या थी, उनके दोबारा जी उठने की क्या पावर थी जो उनके पास थी। That was years after his born again experience. और ये उसको उस टाइम पता लगा था जब वो बॉर्न अगेन होने के बहुत टाइम बाद, यानी कि ये जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो तब भी दे रहा है जब वो बहुत अरसे से बॉर्न अगेन हो चुका है, यानी कि उसके पास वो मुकाशफा बहुत अरसे बाद भी एक्टिव और अलाइव था। ये बात समझा रही है? वो भूला नहीं था, उसको सिर्फ ये मुकाशफा उस वक्त याद नहीं था जब वो बॉर्न ताजा बॉर्न अगेन हुआ था। It wasn't that he didn't know him, and it wasn't that he wasn't close. ऐसा नहीं था कि वो ये मुकाशफा जानता नहीं था, लेकिन वो शायद इस मुकाशफे को इतनी डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता था। He wanted more. मुकाशफे को जानता हो और ऐसा भी नहीं था कि वो इस मुकाशफे को अंडरस्टैंड नहीं करता था, वो 100% उस मुकाशफे को अंडरस्टैंड करता था, लेकिन वो मजीद जानना चाहता था। Paul just loved to be in his presence and to grow what God had begun in him in the churches around. He said that you just love. No, Paul, yeah, he had, God had begun a good work in him, and he was taking. Go ahead. Paul इस बात में इंटरेस्टेड था, उसको इस बात में मोहब्बत थी कि जो मसीह यीशु से वो वाकिफ हुआ है वो इसी मसीह यीशु से सबको वाकिफ कराए, और वो चर्चेस में जाकर ये मैसेज दे रहा था। Jesus said that I called you. Jesus called us out of what we were doing, out of the life we were trying to live. यीशु मसीह ने हमें किस जिंदगी से निकाला? यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें निकाला है किस जिंदगी से? तारीकी की फौजों से उसने हमें रिहा किया है। He said, you did not choose me. यीशु मसीह ने कहा था तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। But I have chosen you. Amen. Yes, I completed the verse. And I have ordained that you would go forth and bear fruit. और मैंने तुम्हें मसा किया है, मैंने तुम्हें अनॉइंट किया है ताकि तुम जाओ और बहुत सा फल लेकर आओ। The love that God has for you overcame everything that you'll ever face in your life. जो खुदा की मोहब्बत आपके लिए, अगर आप उसको जान लें तो आप इस जमीन पर किसी भी चीज पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया, किसी भी चीज पर। Did you know that the disciples did not know Jesus according to the Spirit, but they knew Jesus according to the flesh? क्या ये बात आप जानते हैं कि जो शागिर्द थे वो यीशु मसीह को स्पिरिट के थ्रू नहीं बल्कि सिर्फ उनके फ्लैश के थ्रू जानते थे, यानी कि क्योंकि वो उसको बॉर्न अगेन नहीं थी इसलिए वो सिर्फ उसको बदन के तौर पर जानते थे, ना कि रूह के तौर पर, यानी कि उसको वो खुदा के तौर पर देख नहीं रहे थे उसके जलाल में। They knew Jesus based on his actions, what he did, what he said. वो यीशु मसीह को उसके एक्शंस पे या उसने जो मोजे किए थे या उसके जो वर्ड्स थे उसकी बेसिस के ऊपर जानते थे।
They did not know him according to the Spirit. They knew him as man first. वो उनको स्पिरिट के थ्रू नहीं बल्कि उसको एज अ इंसान पहले जानते थे। Paul knew Jesus according to the Spirit. पौलुस रसूल यीशु मसीह को स्पिरिट के थ्रू जानता था। That's how we have to know him, is according to the Spirit, according to his word. उसी तरह हम भी यीशु मसीह को स्पिरिट के थ्रू जानते हैं, कलाम के थ्रू जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी, जैसे कि पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह को कभी फिजिकली देखा नहीं, ठीक है जी, वो बहुत अरसे बाद आता है स्टिफनेस का कत्ल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझाना ये चाह रहे हैं कि जो शागिर्द थे वो यीशु मसीह के साथ ऐसे जैसे आप लोग मेरे साथ हैं, तो आपने मुझे देखा, पर अगर मैं चली जा गई आसमान पर तो मुझे कोई मेरी स्पिरिट के थ्रू जान रहा है। तो पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह को कैसे जानता था? स्पिरिट के थ्रू, रूह के थ्रू। और जो शागिर्द थे वो किस तरह जानते थे? बदन। Amen. Man, guys, God wants a relationship with you so bad. He loves you so much that he sent his son to die on that cross for you guys, just so he could come live on the inside of you and be a part of you. खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है और हमसे इतना प्यार करना चाहता है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारे साथ हमारे अंदर आके रह सके। Amen. You know, we were talking about this. I was praying about this earlier. हम इस बारे में बात भी कर रहे थे और इस बारे में दुआ भी कर रहे थे। But in the garden on the seventh day, it said God rested. कलाम में लिखा है और सातवें दिन खुदा ने आराम किया। And then it said, when Jesus, when he ascended into heaven, he was seated at the right hand of his Father. और जब यीशु मसीह जिंदा होकर आसमान पर रहे तो वो खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठे थे। And Jesus sent the Holy Spirit down here to do his work. और यीशु मसीह ने अपनी जगह होली स्पिरिट को जमीन पर भेजा ताकि उसका काम कंटिन्यू हो सके। The Holy Spirit is on the inside of you, waiting, just waiting to be let out. होली स्पिरिट हमारे अंदर है और वो इस चीज का इंतजार कर रही है कि हम उसको इजाजत दें कि वो बाहर आकर अपना काम कर सके और हम खुदा के मकसद के अकॉर्डिंगली आगे अपनी जिंदगी में जा सकें। खुदा का पाक रूह इंतजार कर रहा है कि वो हमारे थ्रू काम करे। क्या इंतजार करे वो? कि हमारे थ्रू काम करे। We are to enter into that rest. और हमने जिस इस वक्त खुदा, आपको पता है सातवें दिन उन्होंने बताया कि सातवें दिन खुदावंद ने आराम किया। वही आराम खुदावंद यीशु मसीह हमें जमीन पर देने आए। सलीब पर जान देने का मकसद ही क्या था? अगर आपको बागे अदन वाले आराम में दाखिल ना किया जाए, और वही आराम हमारी जिंदगियों में दाखिल होना चाहिए। आमीन। The rest that we enter into doesn't pay attention to circumstances. जो इत्मीनान खुदा हमारे साथ छोड़ के गया है, जिस आराम में हमें दाखिल करना चाहते हैं, वो आपके सर्कमस्टांसेस में बेस नहीं करता, आपके अराउंड के हालात चल रहे हैं या आप किस चीज से गुजर रही हैं। You rest through the circumstances, knowing him. हम उस आराम में कैसे दाखिल हो सकते हैं? सर्कमस्टांसेस के थ्रू नहीं, किसी फिजिकल चीज के थ्रू नहीं। जब हम जितना ज्यादा उससे वाकिफ होते जाएंगे, हम उसके आराम में दाखिल होते जाएंगे। कितना कोई बात समझे? मैंने क्या कहा? जिस कदर ज्यादा आप उसका फेलोशिप करते जाएंगे, उस कदर ज्यादा आप उसको जानते जाएंगे और आप उसके आराम में दाखिल होते जाएंगे, और उसका हमारे इर्द गिर्द के हालात से कोई ताल्लुक नहीं। Rest is your weapon of freedom that God has given you against fear and anxiety and worry and hurt. Yeah, because the internet was distorted. Rest can be a weapon against fear and anxiety and anger and hurt. अगर आप खुदावंद यीशु मसीह जो आपको आराम देना है उससे आप आज वाकिफ हो जाएं, तो आप पता है वो क्या काम करेगा? वो एक हथियार के तौर पर काम करता है। किस हथियार की तरफ? खौफ का हथियार।
वो आपके अंदर से खौफ को क्या कर देगा, निकाल देगा। फिक्र को, परेशानी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, आप जिस तरह की मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, खुदा का इनाम उसके खिलाफ जंग कर सकता है और आप जीत भी सकते हैं। आमीन। You keep your eyes on Jesus आप during अपनी the circumstance. You keep your eyes. Sorry, I'm sorry. Keep your eyes on Jesus during the storm, and the storm will subside as you speak and you do what the Holy Spirit leads you to do. Okay. जब आपकी जिंदगी में तूफान आ रहे, मुश्किल आ रहे, परेशानी आ रही, तकलीफ आ रही, तो क्या करना है? हालात पे फोकस करना है या खुदा यीशु मसीह पर? तो जब आप खुदा यीशु मसीह पर फोकस करेंगे, जैसे कि आप बाइबल में बहुत सारे वाकयात जानते हैं, तो क्या होता था? हालात बदलते थे, कितने बदलते थे? तो फिर जब आप खुदा यीशु मसीह पर फोकस करेंगे, तो हालात क्या होने लग जाएंगे? बदलने लग जाएंगे। I was given 3 days to live. ओके, अब ब्रदर जोसेफ शायद किसी चीज से गुजरे और उनके पास सिर्फ 3 दिन थे जीने के लिए। 16 years ago. 16 साल पहले ब्रदर जोसेफ की जिंदगी में कोई ऐसी ट्रेजेडी आई जो कि अभी आगे जाके बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो उनके पास सिर्फ कितने दिन रह गए थे जीने के लिए? 3 दिन। They said I would never walk again. और डॉक्टर ने कहा था कि ब्रदर जोसेफ कभी दोबारा नहीं चल सकेंगे। The doctors moved me up to the ICU to die. डॉक्टर ने मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था, मैं क्रिटिकल कंडीशन में था, और उसके बाद में क्रिटिकल कंडीशन को भी क्रॉस कर गया था। उन्होंने कहा था कि मैं मरने वाला हूं। But the rest that was in my heart, अच्छा, लेकिन उस टाइम भी मेरे दिल में खुदा का इत्मीनान मौजूद था। I overcame that disease, and no more sickness in this body. ओके, सो जब ब्रदर जोसेफ हॉस्पिटलाइज थे और डॉक्टर्स उनको कहते थे कि 3 दिन बाद आपकी डेथ हो जाएगी, वो कहते हैं कि उस वक्त भी मेरे पास खुदा यीशु मसीह का इत्मीनान था, मेरे पास ये भरोसा था कि अब कोई बीमारी मेरे बदन पर असर नहीं कर सकती। Whatever you're facing today, God is faithful. Sorry. आज आप कुछ भी फेस करेंगे, याद रखें खुदा वफादार खुदा। Amen. God wants you well in every area of your life. खुदा को हर जिंदगी के एरिया में खुश देखना चाहता है। In 1 Peter 2:24, it says, by your stripes you are healed. पहला पत्रस उसका 2 बाब उसके 24 आयत में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। I'm sorry. 1 Peter 2:24 says, by your stripes you were healed. पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 24 आयत कहती है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। That means it's done. It's finished. He has finished it completely. ये ऑलरेडी हो चुका है, सब तमाम है। God has healed you from the top of your head to the tips of your toes. खुदा ने आपको सर से लेकर पांव तक मुकम्मल शिफा दी है। And it's time for the children of God to walk in that healing. और अब ये वक्त है कि खुदा के जितने भी पर्सन हैं वो उसमें हीलिंग में Amen. मुकम्मल शिफा। यानी कि जब खुदा ने ये कह दिया है कि ये सब कुछ हो चुका है, पहला पत्रस उसके 2 बाब 24 आयत के मुताबिक, उसी सुनिए, अगर आपकी बॉडी में आज कोई सिकनेस है तो इस मैसेज को अपने साथ लेके जाइए। हमने ये इवेंट इसलिए नहीं कराया कि हमने गोरों के साथ पिक्चर्स लेनी थी, हमने इवेंट इसलिए कराया कि गोरों के पास जो मैसेज था वो आपके दिल में उतरे। जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि जब अगर कलाम कह रहे हैं कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, बात हो चुकी है, तो इसका क्या मतलब है? आज आपको डायबिटीज होनी चाहिए, कैंसर होना चाहिए,
कोई भी सिकनेस कह रहे, फ्लू, हेडेक, व्हाटएवर, किसी भी डिजीज का आपकी बॉडी पर अब कब्जा नहीं होना चाहिए। आमेन, आमेन। Amen. I mean, God loves us so much, guys, that sometimes we don't feel like we're worthy or we're good enough. खुदा हमसे इतना प्यार करता है, लेकिन हम कभी कभी अपने बारे में सोचते हैं कि शायद हम इतने वर्दी नहीं है या हम इतने वैल्यूएबल नहीं है। You may see Suresh up here teaching, thinking she is good enough. आप सेरिश को टीच करते हुए सुनते हैं जिसमें वो बताती है कि वो खुदा हमसे कितना प्यार करता है। नहीं, आप सेरिश को टीच करते हुए देखते तो आप समझते हैं कि सिर्फ सेरिश ही अच्छी है, ठीक है? Just because she's teaching doesn't make her better than you. What makes you guys equal is that Christ died on that cross. He became sin that knew no sin, that we may become the righteousness of God in Christ. Just because मैं प्रीच करती हूँ तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सिर्फ खुदा मेरा है। मेरे पास भी उतना ही यीशु मसीह है जितना आपके पास है। मुझे और आपको इक्वल जीसस मिला है, यानी कि जितनी रास्तबाज मैं हूँ खुदा यीशु मसीह की वसीला से, उतने ही आप सब हैं अगर आप सब ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है। आमीन। हमारे पास क्या है? इक्वल जीसस क्राइस्ट, इक्वल। जितना मेरे पास यीशु मसीह है उतना आपके पास। एक्साइटेड नहीं हो रहे? आपके पास यीशु मसीह है। और जिस यीशु मसीह ने सूरज के बना उठाए उसी यीशु मसीह ने आप सबके बेटा। आमीन, आमीन, आमीन। No, man. God took his righteousness and put it on the inside of you. खुदा ने अपनी राजबाजी लेकर, हमारी राजबाजी लेकर हमारे अंदर यीशु मसीह की राजबाजी डाली। But what is God's righteousness? पर खुदा की राजबाजी क्या है? Matthew 6:33 says, seek first the kingdom of God and his righteousness. मत्ती 6:33 वर्ड कहती है कि सबसे पहले उसकी राजबाजी की तलाश करो। What his right उसकी 33 कहते हैं कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। गौर से सुनेगा, बातें मत करेंगे, अटेंशन दे दे। What his righteousness is, it's his character, it's who he is, it's everything about him. जो उसकी राजबाजी है वो उसका कैरेक्टर और सब कुछ उसके बारे में बयान करती है। He has taken his righteousness and placed it on the inside of you and made you perfect. उसने अपनी राजबाजी हमारे अंदर डाली और वो भी बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से, जिसको मजीद इम्प्रूव होने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी राजबाजी को इम्प्रूव होने की जरूरत नहीं है। क्या समझ बात समझ रही है? आप ये नहीं कह सकते आज हम ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, आज खुदा के हम फेवरेट है, कल कम पढ़ेंगे तो कल खुदा के फेवरेट नहीं है। कितनों को बात समझाइए? और ये राजबाजी यीशु मसीह की राजबाजी है जो हम में है। किसकी राजबाजी है? क्योंकि आपकी राजबाजी किसकी मानद है? आमीन। Father has already made decisions, and when he makes decisions, he takes action. खुदा बाप ने पहले ही ये फैसला कर लिया था, और जब उसने फैसला कर लिया तो आपको पता है वो अपने फैसले में कायम भी रहता है, वो अपने फैसलों को पूरा भी करता है। हालेलुया। So what the enemy says is you're not good enough or you're not doing enough. But the truth is it's already done. अगर शैतान इस देखिए अभी आपने सीखा है कि आपके अंदर कौन है और यीशु मसीह क्या है? रास्तबाज। और आप क्या है? यीशु मसीह जैसे रास्तबाज। अब अगर शैतान आपको आगे कहता है कि सैरिश अच्छी है नहीं अच्छी है, तो क्या आप उसका यकीन करेंगे? क्या आपको यकीन करना चाहिए? आप किसके बात को सच्चा ठहराएंगे? क्योंकि आपकी जिंदगी में कौन सच्चा ठहरे? आमीन। In Genesis chapter 3, when the snake was talking to Adam and Eve, उसके 3 बाब में जब सांप आदम और हवा से बात कर रहा था, he told the woman, you will not die. उसने औरत से कहा तू नहीं मरेगी। याद है ये वाक्य? उसने औरत को क्या कहा था?
तू नहीं मरेगी, but your eyes will be opened and you will see. क्योंकि सच्चाई देगी। He was telling Adam and Eve that they weren't good enough. वो आदम और हवा को ये बता रहा था कि वो काफी नहीं है, That God's word was not true. खुदा का कलाम जो है वो सच्चा नहीं है, And to believe what they saw over what God told them. Okay, your voice is breaking so much. Voice broke up. Can you please repeat it? The last sentence. He was telling them that they weren't good enough, that they weren't. शैतान क्या बताता क्या बताता आदम और हवा को कि तुम लोग अच्छे नहीं हो, काफी नहीं हो, मुकम्मल नहीं हो, अभी भी कुछ कम है। The truth was they were already created in the image of God. पर हकीकत क्या थी? वो पहले से ही पैदाइश उसके पहले बाप की 27 आयत के मुताबिक वो खुदा की छवि पर, तो लेकिन शैतान आके अगर उनको धोखा दे सकते तो क्या हमें और आपको नहीं? बात समझ रही? पैदाइश उसके पहले बाप की 27 आयत में उन्होंने क्या कहा था? खुदा कहता है कि मैंने उनको किस बनाया है? अपनी छवि पर तीसरे बाप पे शैतान आके इब्लीस आके क्या कह रहा है कि तुम खुदा जैसे नहीं हो, ये खाने के बाद तुम बनोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तो ये क्या था? सच था, झूठ था? झूठ। They couldn't do anything more to make them in the image of God. वो इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? आपको लगता है कि कोई फल से वो खुदा के बराबर बन सकते? अगर वो फल खाकर खुदा जैसे नहीं बन सकते थे या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो खुदा जैसे बन जाए, तो आज आपको भी डिसाइड करने की जरूरत है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप खुदा के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, खुदा के सामने कबूल हो जाए, सवाए यीशु मसीह के। बात समझा रही है? We have been given that by grace. और ये हमें कैसे मिला खुदा तक एक्सेस? हमें कैसे मिला है? खुदा के फजल के थ्रू। ये उसका फजल था, हमने कुछ भी नहीं किया। आप में से किसी ने यीशु मसीह को की जगह पर जान ली है? पौलुस कहता है तुमने में से किसी ने कभी गुनाह की कुश्ती में खून भी नहीं बहाया है। हमने कुछ भी नहीं किया है और यहाँ पर क्या हुआ है? फजल। और कितना फजल हुआ है? फजल पर फजल। Because of grace, you don't need to do anything. You need to believe. और जब फजल आप पर हो चुका है तो आपने कुछ करना है। और ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, इनके सेमिनार के बाद मैं अपना एक सेमिनार करवाऊंगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं ये जो बातें कर रही है बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड है, इनके पीछे वो मैसेज है जो जिंदगी तब्दील कर सकता है आज, अभी और इसी वक्त आपकी। आपने फजल में चलने के लिए कुछ करना नहीं है। आमीन। When God sent Jesus, he spoke to your circumstances. Yes. Jesus is the word, the living word. खुदा की सूची क्या है? जैसे यूहन्ना की किताब में क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील में कि यीशु मसीह क्या है? खुद खुदा कलाम था। तो यीशु मसीह क्या है? जिंदा कलाम। यीशु मसीह एक पर्सन के बाद क्या है? पर्सन तो वो है पर वो क्या है? जिंदा कलाम है। और वो आपकी सर्कमस्टांसेस से क्या करता है? बात करता है। जैसे उसने तूफानों को थमाया और मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया। Jesus overcame for you already and gave it to you. यीशु मसीह ने ऐसी कोई चीज, सुन लीजिए इंटेलेक्चुअल लोग, सुन लीजिए आज आप पढ़े लिखे होंगे, आप बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, इनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, पर यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो आप अगर उसके पास जाए तो वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता या उसके लिए ऐसा नहीं है जो आप कहेंगे अब ये इंसान के लेवल का काम है, मुझे खुद करना है। आमीन। आमीन।
People ask me, Joseph, why don't I experience freedom? ब्रदर जोसेफ से लोग पूछते हैं कि हम आजादी क्यों नहीं फील कर रहे, अभी तक हमारे हालात तब्दील क्यों नहीं हो रहे? What I see so many times is people want God to move versus believing he has moved. आप लोग क्या समझते हैं? लोग क्या दुआ कर रहे हैं? खुदावन काम कर दे, खुदावन मूव कर दे, हमें नौकरी दिला दे। आपको पता है चाहे वो नौकरी है या कुछ भी है, खुदावन पहले ही कर चुका है। आज क्या मैसेज लेके जा रहे हैं? खुदावन सब कुछ कर चुका है। आपने ये बिलीव नहीं करना कि वो हमारे बिलीव करने से हिलेगा। क्या मैंने बोला? वो आपके बिलीव करने से हिलता नहीं है, वो पहले ही हिल चुका है। आपको इस बात पर बिलीव रखना है। आमीन। आपके बात से They want God to touch them versus believing that God lives in them. He cannot not touch them. लोग एक्सपेक्टेशन, आपको पता है पेंटिकॉस्टल सेक्शन में क्या हो रहा है? खुदा यीशु मसीह हमें क्या करे? आपके अंदर है, आपके क्या छुएगा? आपको मेरी बात समझ आ रही है? लोग क्या बात करें? छू मुझे, ऐसे गीत गाने, पर ऐसे गीत नहीं गाने हैं क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। इससे ज्यादा आपको क्या छुए वो आपके अंदर रहने लग गया है। तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है, ये खुदा के कलाम के खिलाफ बिलीफ सिस्टम है। बात समझ आ रही है? जी ब्रदर। They come and they ask me to pray. Please pray that God would bless me. और वो क्या दुआ करते हैं? और लोग क्या दुआ करते हैं? खुदावन हमें बरकत दे। आप भी ऐसे दुआ करते हैं। लोग क्या दुआ करते हैं कि खुदावन हमें क्या दे? बरकत दे। पर बरकत तो वो दे चुका है। मेरी बात समझा रही है? वो आपको बरकत भी दे चुका है, रासबाजी भी दे चुका है, शिफा भी दे चुका है, नई जिंदगी भी दे चुका है। आपको कोई चीज उसे मांगनी नहीं है, वो ऑलरेडी दे चुका है। आप उसे ईमान रखना है। But in Ephesians 1:3, it says we've been blessed with every blessing in Christ Jesus. Yes. Ephesians 1:3. Yeah. Hold on, let me just read it. हमारा खुदावन यीशु मसीह के खुदा और हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम दो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। मैं वर्ड रिपीट करूंगी, आप जो बरकत उससे मांग रहे हैं उसने वहां पे लिखा है उसने बख्श दी। बात समझ आ रही है? आखिर समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? सो तो नहीं रहा कोई? तालियां बजा दो। The word tells us that in the beginning was the Word was with God, the Word was God, and the Word became flesh. That flesh it became was Jesus Christ. Then it says in Psalms 107:20 that he sent his word and healed all their flesh and delivered them from all their destruction. ज़बूर 107 उसके 20 आयत कहते हैं कि उसने अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको हर तरह की बीमारी से शिफा बख्श दी। क्या नाज़िल करके? कलाम। वर्स पढ़े जरा, ताकि आज आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि उसका कलाम आपको हर तरह की शिफा दे सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? ऑडियंस पीछे वाली यूनिस पढ़ चुके निकालें ज़बूर 107 उसकी 20 आयत। ये छोटे बच्चों को जरा शोर बंद करें, इनको लग कर दें। अच्छा जी, ज़बूर 107 उसकी 20 आयत में क्या है? वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको छुपा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। क्या भेजकर? Amen. क्या भेजकर? कलाम। Amen. Amen. It's God said that he exalted his word even above the name. That word is power. That word is life.
खुदा ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत बख्शी, क्योंकि Word कलाम can- जिंदगी है। The word cannot just be thought, it has to be spoken. कलाम सिर्फ सोचा नहीं जा सकता बल्कि उसको बोलना है। Proverbs 18:21 says, life and death are in the power of the tongue. मिसाल उसकी 18 बाब की 21 आयत कहती है कि जिंदगी और मौत किसके काबू में है? जुबान में। Okay. You ready? So if you remember in Matthew 8, the disciples got into the boat with Jesus and they were मत्ती उसके 8 बाब में खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द एक बोट में ट्रैवल कर रहे थे। there was a big storm and they were very frightened and Jesus was asleep. He had entered into that rest. और आपको पता है जिस वक्त उस कश्ती में तूफान आया उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह क्या करते? मीठी नींद सोते या कच्ची नींद? क्या लग रहा है? ड्रॉइंग मसीह करते हैं। क्या करते खुदावंद यीशु मसीह? गहरी नींद सो रहे थे कि क्या करना पड़ा? कि शागिर्द पतरस आके क्या कहता है? तुझे हमारी फिक्र नहीं है? जी। That's Matthew 8:23 through 26. मत्ती उसका 8 बाब, do you want me to read it? Yeah, please. Okay. Yeah. अच्छा जी, यहाँ पर क्या है? सुनिएगा और से मत्ती उसका 8 बाब उसकी 23 से 26 आयत में पढ़ने लगी हूँ। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। और उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जा रहे हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्तेकाल करो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमल हो गया। In the midst of the storm, they panicked and they woke up Jesus saying, "We're dying." तूफान के बीच में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जो हम करते हैं, हदर बदर मचा देते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं। अब क्या होगा? और उन्होंने क्या किया? वो यीशु मसीह को उठाने चले गए कि हम हलाक हुए जाते हैं। If you believe that God is responding to you versus already have responded, this is how you're waking him up. ओह वाह! उन्होंने एक नया मुकाशफा दिया जो आज मेरे लिए भी नया सुन के लिए तालियां बजाएं। आप ये सोचते हैं, आपकी थिंकिंग है या आपके चर्च ने आपके अंदर ये मैसेज इम्प्लांट कर दिया है, आप ये सोचते हैं कि खुदा ने हमें रिस्पॉन्स देना है। आप खुदा के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, चाहे वो शिफा है या किसी किस्म की फाइनेंशियल ब्रेकथ्रूज है, तो आप खुदा क्या करते हैं? आप भी शागिर्दों की तरह उसी को कश्ती में जिस तरह वो उठाने जाते हैं। हमें बात समझाइए। आप क्या कर रहे हैं? वो अवेक नहीं है, वो अलर्ट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सोता है। आपको लगता है खुदा यीशु मसीह सोता है? कहता है इस्राएल का खुदा ना ऊँघता है और ना सोता है। So let me ask you a question. Who are you in this boat? आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस कश्ती में कौन हैं? Let them tell you some answers. I want to hear their answers. ओके, आंसर देना शुरू करें, मैं इनको बताना शुरू करूँ। Most people are saying that they are disciples. See, And they look like disciples. you are not the disciples.
You are the anointed Son of God who can bring peace to any situation, bring healing to any situation. अरे माम ऐसे ही तेज है तो आप हम ये सोचते हैं देखिए बात में मैं भी सोच सकती हूँ अगर मेरे पे कोई सिचुएशन आएगी तो मैं भी सोच सकती हूँ कि मुझे खुदा के यीशु को इन्फॉर्म करना है ऐसे ही है और आप अपनी दुआ में खुदा को इन्फॉर्म करते हैं कि हम किस तकलीफ और परेशानी से गुजर रहे हैं और आपको खुदा को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसके बेटे और बेटा हैं आप जैसे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा था उस कश्ती में आप भी उस कश्ती में खुदा के बेटे और But one more thing, and then you're up. डरना है या उठ के तूफान को थमा देना है तूफान से बात करेंगे असल में आई थिंक टीचर्स मिलते हैं इसलिए When you read the Gospels, see yourself as Jesus, because you're just as much the Son of God as He is. हमें ज्यादा से ज्यादा अंजीरें पढ़नी चाहिए जो 4 अंजीर हमारे पास अवेलेबल है क्यों क्योंकि जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह की पर्सनैलिटी से वाकिफ होंगे और आप अपने आप को यीशु मसीह जैसा देखना शुरू करेंगे जो कि आप एक्चुअली हैं आप देखने से उसके जैसे बनेंगे नहीं आप पहले से ही उसके जैसे हैं और उस कश्ती में हम डिसाइपल नहीं बल्कि हम यीशु जैसे उस कश्ती में हम डिसाइपल्स नहीं बल्कि हम यीशु मसीह Let me say one more thing. Yeah, go for it. You have the same Holy Spirit that Jesus used during His time. You have the same anointing. आप ये मजाक नहीं है आपको आज शायद ये मैसेज सुनने के बाद भी आप एक बात भूल जाए और आपके पास वही पाक हुआ जो यीशु मसीह इस वक्त इस्तेमाल कर रहा था और सेम पावर और सेम मसा और सेम इख्तियार भी आमीन आपके पास सेम क्या है इख्तियार से क्या कर सकते हैं आप जो चुने जमीन पर भी बांध सकते हैं आसमान में बांधा जाएगा और जो खोलेंगे वो आसमान तक खोला जाएगा God couldn't give you any better, so He gave you His best, so that you could go forth as disciples, lay hands, minister to the oppressed, cast out devils. You go and do the work now. खुदा ने अपने डिसाइपल्स को क्या बोला था खुदा आपको इससे ज्यादा बेहतर नहीं बना सकता कितनों को बात समझेगा पहले तो हाथ खड़ा करें अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया बनता शिक्षक से चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप किस जैसे हैं आपके अंदर किसका रूह बसता है आप जब यीशु मसीह का आपके अंदर रूह बसता है तो खुदा आपको इससे ज्यादा बेटर नहीं बना सकता यीशु मसीह से बेटर कोई है तो फिर आप बेटर बन सकते हैं आपने क्या करना है और मैंने पॉइंट भूल गई उन्होंने क्या कहा था इसके बाद उन्होंने क्या कहा हाँ जी यस हाँ और यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को क्या कहा था कहते हैं जाओ और सब कौमों को सिर्फ अंजीर नहीं सुनानी बल्कि क्या करो लंगड़ों को चलाओ अंधों को आगे दो गूंगों को बुलवाओ बधिरों को रिश्ता को आजाद करो ये खुदा यीशु मसीह का मैंडेट था जो हमने इस जमीन पर पूरा करना है हालेलुया आपको बस सिर्फ खाने बनाना और अपनी आम रेगुलर जिंदगी को गुजारना नहीं है बल्कि खुदा यीशु मसीह के एजेंडा और मिशन को पूरा करना है Amen. Woo! Get me excited. Man, all right. We're going to turn this around a little bit. It's time for you guys to operate in the spirit and to start laying hands on the sick to people around you. अपने आप के ऊपर कह रहे हैं कि अब आप लोग खड़े होंगे और आप एक दूसरे पे हाथ रखेंगे अगर आप में से कोई बीमार है तो आप उस पे हाथ रखेंगे ताकि वो इंस्टेंटली शिफा पा जाए अब ये बात है कि हम शागिर्दों वाले काम करेंगे क्योंकि वही स्पिरिट जो खुदा ने जो यीशु मसीह की थी हम में है और हम वही सब मौजे करेंगे जो कि खुदा के शागिर्दों में What you have to realize, it's not the you working through the Holy Spirit. It's the Holy Spirit working through you. आपको ये चीज रियलाइज करनी है कि ये आप ये जो होली स्पिरिट के थ्रू काम करें बल्कि ये होली स्पिरिट है तो आपके थ्रू काम करें कहने का मतलब कि आप ये नहीं सोचना तो मैं स्पेशल इसलिए होली स्पिरिट मुझे इस्तेमाल कर नहीं आपने ये सोचना है होली स्पिरिट स्पेशल है मैं इसको सरेंडर करूं और वो मेरे थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है Hey, can we turn the camera around so we can see the people?
हम कैमरे को मूव करेंगे ताकि हम लोगों को देख सकें और हम साथ एक और काम कर सकते हैं। हम एक Amen. इंसान को अच्छा होल्ड ऑन वी डू वन थिंग देन यू कैन सी द होल कॉन्ग्रेगेशन। आप Okay. इस फोन से जूम ज्वाइन करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप मीटिंग में ऐड हो जाओ और फिर आप यहाँ पे कैमरा खड़े हो तो फिर सारी हमारी कॉन्ग्रेगेशन आ जाएगी।